afternoon, everyone. I, Mudita Raj, Assistant Professor, Delhi Metropolitan Education, welcome you all to the 29th episode of the Vibrant India series. I also welcome all our viewers who are watching us live on Facebook. Vibrant India series is an initiative of DME Media School for celebrating 75 years of India's independence. This series will be a year-long exercise. As a part of this series, we invite inspiring personalities for online talk, interview, and interaction with our students. The invited personalities for this series are from all walks of life in all parts of the country. And today, our special guest is Mr. V.K. Gaur. I would like to take a moment and introduce Delhi Metropolitan Education to our viewers. Delhi Metropolitan Education, DME, is an A-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi, and approved by the Bar Council of India. The institute offers BBA, BLLB, BBA with BCI approval and BAJMC programs. DME believes in imparting world-class education to its students while training them to develop and enhance their skills. This education and training enables them in taking up challenges of the industry and creating a space for themselves with their competence and vigor. DME Media School is one of the most promising media institutes in the country. It offers BA in journalism and mass communication. It is recognized as a school focused on the growth of its faculty and students through academic and co-curricular activities. Major flagship events and initiatives of the school include the BG Varghese Guest Lecture Series, Peer-to-Peer FTP, International Film Festival, SIFI, International Conference, ICANN, and Ritika, Convention of Media Students. And newly added to this list is the Vibrant India series. It is our privilege to introduce you to our guest, the personality of the 29th episode of VIS. I request Nandini, student DME Media School, to introduce the guest. Over to you, Nandini. Thank you, ma'am. Mr. Virendra Kumar Gaur retired as Inspector General Border Security Force. He is passionate about social justice and rights actively on contemporary issues. Sir fought India-Pakistan War in 1965 on Lahore front. Mr. Gaur took part in Battle Dograi, which was declared as a battle of honor in military annals. Sir has over 3 decades of experience of handling various assignments in BSF. He has managed President Police Guard at Rashtrapati Bhavan. Mr. Gaur was honored with President Police Medal for Distinguished Service and Police Medal for Meritorious Service. He has written 51 books on varied subjects ranging from war, tribal life, insurgency, and terrorism, amongst others. He has won 5 national awards for his books. It is our honor for DME Media School to host you, sir. Now, I request technical team to share a video showing some glimpses of his life. Thank you, ma'am. For joining us today. It is indeed an honor to host you. I now request Professor Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, to please formally welcome the guest. Over to you, ma'am. Thank you, Mudita. Vibrant India series is a tribute to all those people who made supreme sacrifices for the independence of our motherland. India will be completing 75 years of independence this year. We started celebrations last year only. This program has been launched as a part of these celebrations. In the first episode of Vibrant India series, our guest was Brigadier P.K. Saxena, who served the country in 2 wars. Following this, Madam Bhavrin Kandhari, a known environment activist, Professor Ujjwal K. Chaudhary, senior media educator and column writer based in Calcutta, Dr. Nakul Parashar, science communicator and director of Vigyan Prasar, Dr. Monisha Behel,
social activist from the Northeast based in Tezpur, Mr. Rajesh Padal, senior journalist, writer, filmmaker, and broadcaster, Colonel R.K. Dargan, professor and advisor at MIT School of Communication, MIT University Noida, graced this program. To name the other celebrated personalities in the series, Mr. Ashish Kulkarni, the pioneer of animation industry in India, based in Mumbai, Madam Tripti S. Singhal, an entrepreneur and startup consultant, Captain Dharmveer Singh, a versatile personality and army man, Madam Jyotika Kalra, member of National Human Rights Commission, Mr. Sanjay Banerjee, a sport journalist, broadcaster and commentator, Mr. Augustine Bellet, communication specialist with UNICEF, Captain Indrani Singh, a pilot and entrepreneur, Ms. Vibha Lakhera, a social activist, Mr. Arvind Gaur, a theatre personality, Dr. Sachidanand Joshi, a writer and educational administrator, Lieutenant General Sanjay Kulkarni from the Indian Army, Dr. Gurmeet Singh, author and global Hindi educator and squadron leader, Prerna Chaturvedi, a veteran of Indian Air Force, were our guests. Since the beginning of 2022, Mr. Shambhu Nayak Shukla, a senior journalist, column writer, and author, Mr. Lakshmi Shankar Vajpayee, an eminent poet, commentator, and broadcaster, Sufi Sayyid Azmal Nizami, custodian of Sufi Dargah Nizamuddin, Aulia, and Dr. Dave Ackett, media educator from the University of North Carolina in the US, have graced the Vibrant India series. In the making of this country, we all play our roles as a soldier, doctor, engineer, as educator, journalist, lawyer, environment activist, social activist, as science communicator, filmmaker, as human rights protector, as a sports person, army person, as literary person. In the last 3 episodes, Mr. Palvi Fauzdar, an adventure motorcyclist, Mr. S.P. Rawal, author of Open, Past, Open Future, and Dr. Mridula Tandon, a social worker, have appeared in Vibrant India series. Today, in episode 29, we have an inspiring personality with us, Mr. V.K. Gaur, former RG of BSF and eminent author. Welcome, Mr. Gaur, in Vibrant India series. Thank you. Thanks to all of you. Thank you, ma'am. I now request Professor Dr. Amrit Saxena, Dean DME Media School and originator and ideator of the Vibrant India series, to address the gathering and take the program forward. Over to you, sir. Thank you, Mudita. So it's a matter of pride and privilege that we have Mr. V.K. Gaur with us today. He is a veteran and he has so many shades in his life and so much contribution he has made for the country. Initially as an army person, who brought glory to the country by fighting many wars and winning those wars. So as an army man, he has made immense contribution. And then obviously as a writer, as author, he has written so many books, award-winning books. And through his literary contribution, through his journalistic contribution, he has making immense contribution for the sake of this country, for the development of the country. So I welcome you, Mr. Gaur. And he was initially reluctant to be part of this series, but then we were lucky that he finally got convinced, and he is today with us, talking to us, particularly the students. As it has already been told about this series, and we know that the whole idea was conceived to bring to such illustrious personalities to this series
who can motivate to the students. And to our luck, so many eminent people agreed to be part of this series, and many more to come, because this whole series is into 75 episodes. So we will be inviting so many such motivating personalities. And it is a matter of fact, whenever we are working, whichever field we are working, we are always getting some inspiration from one another, and particularly those who have made immense contribution. So their life itself becomes an inspiration. And we are sure that we are getting a lot of such inspiration from Mr. God today. And talking about the format of this program, as we know that this whole program has been divided into 4 segments. After this first introductory segment, we will move on to the second segment of the program, wherein we will be requesting Mr. God to narrate his life journey, the important milestones in his life, the problems, the challenges that he would have faced, the achievements that he would have got. And there could be many such things which are worth narrating to the people. And I will request you, Mr. Gaur, to tell us some such experiences which you even cherish today, and such anecdotes which are worth sharing. And that will be followed by a few questions which I will be asking to you. And in the final segment, we will be asking the students to put up their questions. So that is all about this program. Now, moving on, I will request you, Mr. Gaur, to please address us and narrate your life journey to us. Thank you. My earliest memories of life go back to Badaयूं. It is a Mughal period town, very small town. And most probably it was 1945. I was born in 1942 and about 3 years old. I heard 2 words: the war, the Second World War, and the riots, dange. My sister, she used to tell me many stories. At the age of 3, I went to school. I went to school of those days, not of the modern time. उस जमाने में स्कूल बड़े भग्नावस्था वाली बिल्डिंगों में हुआ करते थे. नीचे बैठने के लिए टाट होता था और उस टाट पर बैठ करके हम पढ़ा करते थे. स्कूल जाते समय एक तख्ती होती थी, एक थैला होता था और कलम दवात होती थी. हमें इंतजार होता था कब छुट्टी होगी और कब बाजार में हलवाई के यहाँ से हमें धोना मिलेगा. फादर ने हलवाई से कह रखा था, भगत सिंह नाम के हलवाई थे, कि जब बच्चे आए तो इनके एक दोना दिया करना. दोना, कंटेनर ऑफ लीव्स and with some sweets for them, particularly the jalebi and barfi. One day, suddenly, the bell rang in the school and master said, दंगा फैल गया है, छुट्टी हो गई, घर भाग जाओ. दंगा नाम तो सुना, मगर दंगा होता क्या, I did not know. I moved out and moved towards the halwai. Let me collect my dona. But the halwai shop was closed. Then suddenly I found a lot of uproar and fighting going on the main street. A Sardarji, Sikh gentleman, had 2 swords in his hand. He was fighting. He was being attacked by a mob. Blood was there. Injuries were there. And he was fighting. I was suddenly pushed back by somebody. So that was my first meeting with the Roids. After about a year, my father was transferred to Meerut on a research firm, and we also moved. The partition of India and independence had not yet come. रोज कहानियां सुनते थे, यहाँ दंगे फैल गए, वहां दंगे फैल गए. दशहरा मेले में जब लोग गंगा नहा रहे थे, तब मारकाट मच गई.
तो इस तरह की मारकाट मैं देख चुका था, लेकिन असली मारकाट कैसी होती है इसका अनुभव मुझे बहुत बाद में हुआ। मैं स्कूल में जाने लगा। उस जमाने के स्कूल बहुत छोटे हुआ करते थे, आजकल के स्कूल नहीं, और टीचर्स को वेतन मिलता था 90 रुपए से लेके 120 रुपए तक। लेकिन उन्होंने जो संस्कार हमें दिए, भारत के प्रति प्रेम, बोलना चालना, व्यवहार करना, बड़ों का सादर सम्मान करना, ये उनसे सीखा। घर पर मेरी माँ मेरी शिक्षिका थी, वो मेरी गुरु थी, और स्कूल में मेरे टीचर्स थे। उस जमाने में जो हम किताबें पढ़ते थे उनमें सबसे ज्यादा सिलेबस वीरता का था। झांसी की रानी, राणा प्रताप, ऐसे लोगों की जीवनी हमने वहीं सीखी, और उनकी कविताओं को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। जरा अंदाज लगाइए, है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कट कट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते लड़ते झुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे। या पद्माकर की कविता सुनिए, टप्पे की टकोर टक्करन की तड़ातड़ी, माचे जब कूरम करिंदन की लड़ा लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये भावनाएं सुनकर, ये पढ़कर मेरे मन में एक ही भाव आया कि मैं सेना में जाऊंगा और एक अफसर बनूंगा, लड़ाई देखूंगा और लड़ाई के ऊपर एक पुस्तक लिखूंगा। उस जमाने में कहानी बहुत चर्चित थी। उसने कहा था, वो कहानी जब आज देखता हूं तो लगता है वो कपोल कल्पित थी। गुलेरी जी ने युद्ध नहीं देखा था। मेरी इच्छा बहुत थी युद्ध देखने की। सन 63 में मैं सेना में गया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से मैंने ट्रेनिंग ली और मेरी पहली पोस्टिंग कश्मीर में हुई। कश्मीर में जिस जगह मैं पोस्टेड था उसे हम उस जमाने में सीज फायर लाइन कहते थे, उसे आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। पहाड़ी पर मेरी पोस्ट थी। एक तरफ बनिहाल टनल पर जमी हुई बर्फ दिखाई देती थी, घाटी के बाद पहाड़ियों की श्रृंखला, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की पोस्टें। पाकिस्तान की पोस्टें हमसे मुश्किल से 500-600 गज दूर थी। जो कुछ संयम डिसिप्लिन हमने अपने आप यहाँ देखा, हमें गांव में जाना अलाउड नहीं था। एक उनके सोल्जर्स खुलेआम उन घरों में जाते थे जिनके मर्द बाहर जा चुके थे। मुर्गी मुर्गे बकरे लेकर के लोग भेंट के रूप में वहां आते थे। खैर, 2 वर्ष बाद मेरी बटालियन 15 डोगरा अमृतसर पीस स्टेशन में आ गई। जून का महीना था। अभी हम वहां पहुंचे ही थे कि 2-3 हफ्तों के बाद हालात कश्मीर में बिगड़ने लगे। घुसपैठ शुरू हुई। अगस्त के महीने में युद्ध शुरू हुआ 1 सितंबर से, और 1 सितंबर को यह घोषणा कर दी गई कि अमृतसर भी एक फील्ड एरिया है। हमारी बटालियन को टास्क मिला था ब्रिगेड की सबसे अगली बटालियन होने के नाते जीटी रोड पर एडवांस करेगी, सबसे पहले कब्जा करेगी। पाकिस्तान की पोस्ट सतलुज रेंजर्स की विग हेडक्वार्टर पर, और उसके बाद लाहौर की ओर आगे बढ़ेगी। 6 सितंबर 1965 की सुबह हमारी एक कंपनी ने उस पोस्ट पर कब्जा किया और शेष बटालियन आगे बढ़ी। मैं इंटेलिजेंस अफसर था अपने सीओ का। जब हम उस पोस्ट के पास पहुंचे तो लाशें बिखरी हुई थी दुश्मन की, और 100 से अधिक बंदी, जंगी बंदी वहां पर एकत्र थे जिनको निरस्त कर दिया गया था।
सर अचानक मेरी नजर बाईं तरफ गई, जब बड़ी तादाद में लोग बदहवास होकर भाग रहे थे। औरतें थीं, बच्चे थे उनकी गोद में, आदमी थे, बुढ़े थे, इन्फर्म थे, कितने लोग थे। वो भाग रहे थे इस भय से कि शायद भारतीय सेना उनको गोली से उड़ा देगी। नो फायर वर्क डन, नो फायरिंग, वी मूव्ड ऑन। तो सबसे पहली कॉलोनी थी कस्टम कॉलोनी, उसकी हमने सर्च लेनी शुरू की। मैं अपनी टीम के साथ एक छत पर गया, पहले फ्लोर पर। उसमें रहने वाले न्यूली मैरिड लोग थे, उनके तार जो शादी के बाद बधाई के आए थे, गले में डाले जाने वाली मालाएं, सेहरा वगैरह सब वही थे, लेकिन घर में कोई नहीं था। मैं जाने लगा, अचानक मुझे खांसने की आवाज आई और मैंने उस अलमारी को देखा जहां से खांसने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो एक न्यूली मैरिड गर्ल बाहर निकली, हाथ जोड़ के, मुझे मारो मत, चाहे कुछ कर लो, और उसने अनड्रेस करना शुरू किया। मैंने उससे कहा कपड़े पहनो और बकवास बंद करो, हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं, कौन है और तुम्हारे यहाँ। उसने अपने पति को गालियां देनी शुरू की। मैंने अपने लड़कों से कहा इस औरत को कुछ मत करना, नीचे उतर आओ, और अगर यहाँ रहना चाहती तो रहे, और यहाँ से अगर लाहौर की तरफ भागना चाहती तो जाए। मेरे एक और दोस्त दूसरे मकान में तलाशी ले रहे थे, लेफ्टिनेंट केएस कटोच। वो घर एक ब्रिगेडियर का था, रिटायर्ड का। उस घर में 3 लोग मिले, एक महिला, उनकी पत्नी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, और उनकी लड़की। उन्होंने ऑफर किया हमारी लड़की को ले लो, हमें जान से मत मारो। अजीब ताजुब है, सब कुछ समर्पित करने को तैयार थे। वहां से हम आगे बढ़े। 9:30-10 बजे के करीब हवाई हमला हुआ, और तब पहली बार एहसास हुआ कि जो लड़ाई सन 14 और 18 के बीच लड़ी गई, या 39 से 45 के बीच लड़ी गई, वो आज जैसी लड़ाई नहीं है। भयंकर लड़ाई थी, भयंकर। एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स आई और उसने गाड़ियां उड़ाई, बमबारी की। लेकिन एक बात उसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि हमें समझ में आया कि शत्रु से बदला कैसे लिया जाता है। 8 तारीख को मेरी बटालियन के मेजर जितेंद्र सिंह ने एक सेवर जेट को LMG से मार गिराया। यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं, पाकिस्तान आर्मी में यह अंतर था कि हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंटेज के हथियार थे, और इनमें रुके बहुत पड़ती थी, रुकावटें बहुत पड़ती थी। 2 ही हथियार नए थे हमारे पास, स्टेन गन और पिस्तौल। लेकिन एंटी टैंक गन RCL के अलावा इतने पुराने थे कि वो काम नहीं करते थे। 10 सितंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया। उस समय तक हम 7-8 मील अंदर थे पाकिस्तान में, और उन्होंने टैंकों के साथ हम पर हमला किया। टैंकों के हमले से पहले एयर अटैक आया, आर्टिलरी का फायर हुआ, और जब ये बंद हुए तो टैंकों ने आगे बढ़ना शुरू किया। हमारी अगले मोर्चों पर उन्होंने रौंदना शुरू किया। इसी बीच जहां मैं था वहां मेजर बेदी जो कंपनी कमांडर थे और आर्टिलरी के बैटरी कमांडर भी थे, उन्होंने RCL गन के हैंडलर हवलदार लेखराज से कहा एंगेज करो। एक LMG साथ में थी, और वो गन एक गन्ने के पीछे छिपी हुई थी, गन्ने के खेत के पीछे। लेखराज ने गन लोड की, पहला राउंड फायर किया और टैंक को हिट कर दिया। उसे दूसरा राउंड लोड किया, फायर किया, लेकिन मिस हो गया। जब वो तीसरा राउंड लोड करने लगा तब तक वो एक्सपोज हो चुका था। हमने कहा छोड़ दो, गन छोड़ दो, नहीं तुम्हें उड़ा देंगे। और उसने कहा नहीं साहब, मैं फायर करूंगा।
हमसे करीब 10 या 15 गज दूर ही था वो। उसने फायर किया, उधर से टैंक ने फायर किया, सब तरफ धूल धुआं धड़क कर वो लाश का लोथड़ा मेरी गोद में आकर गिरा। पूरी वर्दी रक्त रंजित हो गई थी। मेरे सिर का हेलमेट उड़ गया था, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी थी। उस बहादुर व्यक्ति ने इतनी शानदार लड़ाई लड़ी, शायद और कहीं होता तो उसे परमवीर चक्र जरूर मिलता, लेकिन युद्ध में लड़ने वाले सब लोगों को अवार्ड नहीं मिला करते। युद्ध के अंत में हमारे ब्रिगेड ने डोगराई पर हमला किया। बहुत बहादुरी के साथ लोग लड़े और हमने उस पर कब्जा किया। सीज फायर होने के बाद हम पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इकट्ठा कर रहे थे। उसमें बटालियन कमांडर था, मैंने उसको देखा, वो एक गड्ढे में पड़ा हुआ था और पूरी तरह जख्मी था। मैंने कहा हैंड्स अप। उसने कहा नो, आई एम वेरी क्रिटिकली इंजर्ड, तुम मुझे गोली मार दो। मैंने देखा वाकई में बुरी तरह जख्मी था। आई सेड नो सर, वी विल नॉट किल यू, we'll treat you. You are a prisoner of war, you have surrendered. You will be treated like under the Geneva Convention. He said, can you give me a cigarette? I said, sure. Okay, lit it. तो मेरे पास सिगरेट थी, मैंने सिगरेट जलाई और उसको दी। तो युद्ध में दुश्मनी तब तक है जब तक हम एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन एक बार दूसरा जब सरेंडर कर देता है तो उसका इलाज भी उसी तरह किया जाता है जैसे जख्मी का। एडीएस में जब उसको पहुंचाया गया कर्नल को, तो सबसे पहले उसको ब्लड चढ़ाया गया। मैंने डॉक्टर से पूछा, हमारे आदमियों का ब्लड तुम एक पाकिस्तानी को दे रहे हो, हमारे लोगों को क्यों नहीं दे रहे? उसने कहा साहब, यहाँ पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी नहीं है, जो ज्यादा जख्मी है हम उसको पहले ट्रीट करेंगे। ये हमारी परंपरा है भारत की। 26 मार्च 1966 को हम लोग वापस आए। भव्य स्वागत हुआ। इतना भव्य स्वागत अमृतसर शहर ने किया जितना जाते समय उन्होंने जय जयकार करके हमको भेजा था। युद्ध में ब्रिगेड की काफी हानि हुई थी। ऑलमोस्ट 1/3 was written off, but that is a part of war. जिस मेजर ने सेबर जैक मार के गिराया था उसको वीर चक्र मिला, एक और मेजर को वीर चक्र मिला, लेकिन मुझे खेद है कि लेखराज का बलिदान व्यर्थ गया। उसके बाद 66 में मैं जून के महीने में सीमा सुरक्षा बल में डेपुटेशन पर आ गई। ये फोर्स खड़ी हो रही थी और तब तक मेरे मन में बहुत सारी बातें थी, खास तौर से वायलेंस की, जो मुझे देखने को मिली बीएसएफ में आने के बाद। रेजिंग हो रही थी और ये वो जमाना था युद्ध के बाद का, महंगाई बढ़ रही थी, बहुत अस्त व्यस्त व्यवस्था थी, जगह जगह एजिटेशन थे, डेमोन्स्ट्रेशन थे, काउ स्लॉटर का केस था। लेकिन ऐसा भी हुआ कि जो सुरक्षा बनाने वाले थे उनके यहाँ भी आंदोलन हुए, पुलिस का एजिटेशन हुआ, इलेक्शन के रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, सूबों की मांग हुई। और उसके बाद 3 वर्ष के बाद मैं मेघालय चला गया। मेघालय नया देश बना था, नया प्रोविंस बना था, बड़ी शांति थी बॉर्डर पर, हमारे संबंध बहुत अच्छे थे सीमा पार की ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के अधिकारियों से। लेकिन कुछ समय बाद सन 70 में कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि
वहां आंदोलन शुरू हुआ। इलेक्शन में अवामी लीग को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स उनको सत्ता में बैठने नहीं देना चाहते थे। 25 मार्च 1970 की रात को हमारी सीमा चौकियों पर लोगों ने हाहाकार मचाना शुरू किया, हमारी रक्षा करो। पाकिस्तानी लोग कह रहे थे हमें शरण दो। ढाका में पाकिस्तानी सेना ने लोगों को गोलियों से उड़ाना शुरू कर दिया, टैंकों से, मशीन गनों से, हमारी रक्षा करो। और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर शरणार्थी भारत में आए, उनको शरण दी गई, मुक्ति वाहिनी बनी। और उसके बाद 3 दिसंबर को 1970 में पाकिस्तानी सेना ने, एयरफोर्स ने हमारे ऊपर हमले किए और 4 दिसंबर को भारतीय सेना ने उसमें कूच किया पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए। अब मैं आपकी तुलना ईस्ट पाकिस्तान की उस युद्ध से कराना चाहता हूं जो सन 65 में हमने देखा था। जब हमने 11 दिसंबर को मेमन सिंह को मुक्त कराया, उस समय हमारा स्वागत इतना भव्य हुआ जय जयकार के साथ, जितना कि अमृतसर लौटने पर हुआ था। ये बड़े, वहां पर हमारे स्वागत में आई हुई महिलाओं से मैंने पूछा, वो लोग वहां के सर्किट हाउस में आए थे, मैंने पूछा आप लोग पर्दा नहीं करते? तो उनका उत्तर बहुत सुंदर था। बोले भाइयों से कौन पर्दा करता है, आपने हमारे देश को बचाया है, हमारी रक्षा की है, आप लोगों से कैसी, आप तो हमारे मुक्तिदाता हैं। 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया 16 दिसंबर को और युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन जो कुछ युद्ध से पहले देखा था और उसके बाद युद्ध क्षेत्र में जो देखा, उनकी डिफेंसेस में देखा, महिलाओं के वस्त्र, डेड बॉडीज, बलात्कार की वो दृश्य नजर आते हैं जो हमने पाकिस्तानी सेना में देखे। भारतीय सेना, भारतीय सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी सेना का यही अंतर है। हम लोगों को सम्मान करते हैं, अनुशासन रखते हैं, मानवीयता का ध्यान रखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने अपने ही देश के लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, औरतों की इज्जत लूट ली। और जब उन्होंने सरेंडर किया तो उनकी एक ही मांग थी, हमें मुक्ति फौज से बचाओ, हमारी हिफाजत करो। यानी जो लोग सरेंडर कर चुके थे वो भी ये कह रहे थे। इसके बाद मुझे अवसर मिला, जो युद्ध के बाद स्थिति बनी, मुझे मौका मिला बहुत नजदीक से देखने का कि इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज में क्या घटना घटती है। आए दिन तो घटनाएं घटती थी। पहले सन 78 में अलीगढ़ में दंगे हुए। उन दंगों में काफी लोग मारे जा गए थे, लेकिन मारे जाने लोगों की अपेक्षा जो फिगर्स आती थी सुन करके अफवाहों में, वो कहीं ज्यादा थी। ऊपरकोट एक जगह है, वहां पर कोतवाली थी। उस कोतवाली में मेरा मुख्यालय था, मैं कमांडेंट था उस समय। तो एक पत्रकार आए, खास तौर से पत्रकार दोस्तों के लिए जो मेरी बात को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है जानना। उन्होंने कहा साहब, एक हिंदू लड़की को मुसलमान घर में छिपा रखा है ऊपरकोट में और उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है, आप उसको बचाइए। मैंने कहा आप उस घर को जानते हैं? उसने कहा साहब जानते हैं। बताएंगे कि हाँ, तो उसे रेफरेंस दिया, ये नंबर है, वो देख लीजिए आप।
ठीक है, मैं अपनी टीम को लेकर के गया, दरवाजा खटखटाया, पुराना मकान था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, एक महिला निकली, एक बुढ़ा आदमी निकला। मैंने कहा इसमें कोई औरतें छिपी हुई हैं तुम्हारे घर में? नहीं साहब, आप देख लीजिए। तो आवाज किस चीज की आ रही है? उनकी आंखों में आंसू थे। बोले साहब, हमारे बेटे की बहू के पेट में बच्चा है और 2 दिन से दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा अस्पताल क्यों नहीं ले जाते? कि साहब कर्फ्यू लगा हुआ है। मैं पहुंचा दूं? हाँ, पहुंचा दीजिए साहब। इस बहाने मुझे घर को देखने का मौका मिला। एक ही औरत थी और पूरे समय से थी, बच्चा उसका पेट में मर चुका था। हॉस्पिटल ले गए, स्टिल बॉर्न बेबी हुआ। मैं लौट करके आया, मैंने पत्रकार से पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अफवाहें फैलाते हो। इन अफवाहों से ही तो ये दंगे फैलते हैं। वहां से मुझे जाने का मौका मिला मुरादाबाद में। वहां ईद के रोज गंदे जानवर को फेंके जाने को लेकर युद्ध शुरू हुआ था। युद्ध ही कहूंगा मैं तो। उन्होंने पीएससी की पोस्ट पर हमला कर दिया, मारकाट मची, कर्फ्यू लग गया। मैंने कहा देखा जाए कि ये कौन सा गंदा जानवर है, उसका ईदगाह तो खुला होता है, लेट मी ऑल्सो सी। मैं वहां गया तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा अच्छा देखा जाए, वहां पर मुसलमानों की बस्ती थी, इस बस्ती से तो कोई तो बताएगा कि किसने देखा था फेंके गए सुअर को। मैं गया, मेरे साथ छोटी सी टीम थी। मैंने वहां पर दरवाजे खटखटाए, लोग बाहर निकल करके आ गए। मैं कहा भाई ये झगड़ा क्यों हुआ है? कि साहब गंदा जानवर फेंक दिया था। किसने देखा? अब वो एक दूसरे की ओर देखें, देखा किसी ने नहीं था, सिर्फ अफवाह थी। अफवाह के ऊपर मारकाट शुरू हुई और सब कुछ नष्ट हो गया। मैंने कहा आपको क्या सहायता चाहिए? कि साहब मेडिकल चाहिए, दूध नहीं है बच्चों के लिए। तो ये व्यवस्था जो बिगड़ी सिर्फ अफवाहों के कारण है। पत्रकारों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब स्थिति बिगड़े तो वहां पर संयम से काम लें। अफवाह फैलाने वालों को डिटेल में पूछे, भाई तुम्हें किसने बतलाई ये बात? तो स्थिति बिगड़ती नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो आपसी दंगे होते हैं ये आमतौर पर शहरों में होते हैं, गांव में नहीं होते। मुझे याद है बचपन में एक बार मैं स्कूल से लौटा तो मेरी माँ ने कहा जाओ बाबा को सलाम करो। मैंने कहा बाबा को सलाम करूं? क्या वजीर बाबा आए हैं गांव से, जाओ सलाम करो और जाओ ये नाश्ता ले जाओ उनके लिए। तब तो मैं ले गया। मैंने कहा बाबा सलाम। उनका राम राम बेटा, खुश रहो। आओ। गोद में लिया, बहुत प्यार किया, भोजन किया। उसके बाद मैं लौट करके आया। मैंने माँ ये तो मुसलमान है, ये हमारे बाबा कैसे हो गए? बोले बेटा गांव में सबके रिश्ते होते हैं, तुम्हारे पिताजी के चाचा लगते हैं ये रिश्ते में। तो मैंने कहा अम्मा वहां झगड़े नहीं होते, वहां दंगे नहीं फैलते? कि नहीं, गांव में एक दूसरे कोई हमला नहीं करता। ये हमले तो उन्हीं जगह होते हैं जहां हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता था। मेरी जीवन यात्रा तो बड़ी लंबी रही है, बहुत कुछ देखा है और उसको बताने में तो शायद मुझे कई घंटे लग जाएंगे। मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर प्रश्न लोग करना चाहें, कुछ जानना चाहें। जी 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 आप गौड़ साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही मतलब अलग ही तरीके से चीजें बताई, लेकिन आपने जो बताया सारा मर्म उसी में छिपा हुआ है, सारा ज्ञान सब कुछ उसी में है। अगर ये हम समझ जाएं जो आपने बताया तो सही मायने में हमारा देश जैसा होना चाहिए वैसा हो जाएगा। जिस तरह की जो अगर मैं उससे निकाल पाया आप, जबकि आपने तो बहुत ही नेचुरल तरीके से अपनी सारी चीजें बताई।
जो प्रॉब्लम्स आज भी हमारा देश फेस कर रहा है, चाहे वो कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम हो, चाहे वो जो डिवाइड है बिटवीन पीपल ऑफ वन रिलीजन एंड द रिलीजन, एंड देन the relationship between one country and another country, particularly the neighboring country, and the kind of problem that we have always been having with Pakistan. So all these issues, I mean, whatever you said, they have a deep commentary on the current scenario on the borders, in the neighborhood, and within the country, the people of one religion and another country. But then since your life has been, I mean, your journey has been very, I mean, vast, and you have been doing so many things, and particularly after retiring, as I know that you have been contributing a lot for writing, and you have written so many books and all. So I would like to know about that aspect of your life, your literary contribution and the books that you have written on contemporary issues, and whatever you have told us. A lot of such things have been narrated in the form of your book, which are published and which are accomplished. So I would like to know something more about that side also. देखिए, जो मेरा मेरा मूल उद्देश्य युद्ध देखना और युद्ध पर जीवंत वृत्तांत लिखना था, लेकिन युद्ध इतना भीषण होता है, इतना कटु होता है, अगर मैं उसकी कथाएं आपको सुनाऊं एक एक घरों में जब मैं गया हूं और जब मैंने उसको लिखना शुरू किया, तो उसने कहा था कहानी से कहीं भिन्न होगा। एक गांव की हम तलाशी ले रहे थे। वैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारी जो अभी ऑडियंस है यहाँ पे सारी यंग जनरेशन है जिनकी एवरेज आयु 20-21 साल है। तो आपने जिक्र किया, उसने कहा था, और मुझे लगता है इसमें से शायद ही किसी ने उसने कहा था कहानी पढ़ी हो, क्योंकि वो आपका रेफरेंस पॉइंट है, पहले भी आपने जिक्र किया। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को बताया भी जा सकता है कि उसने कहा था, कहानी थी क्या? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। संभवतः ये पहले विश्व युद्ध की है, और उसमें ये लिखा है कि पहले तो उन्होंने एक प्यार की कहानी बताई है, तेरी कुड़माई हो गई वो कितनी धक है। अब कहानी तो लंबी है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है उसको शॉर्ट में कहना। लेकिन जो युद्ध के क्षेत्र में उन्होंने विवरण दिया है वो ऐसा होता नहीं है। एक जर्मन आ गया और पंजाबी बोलने लगा और उसको पहचान लिया, इस तरह की कहानियां ये कपोल कल्पित हैं। तो मैं ये देखना चाहता था कि क्या मैं इससे बेहतर कहानी लिख सकता हूं। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्योंकि उससे बड़ा बढ़िया आलोचक दूसरा नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा कटुता उसमें होती है, सबसे ज्यादा मधुरता उसमें होती है। उसने कहा, तुम्हारी जो सबसे अच्छी कहानी लिखी है तुमने युद्ध की लिखी है, जो पुस्तक लिखी है एक और युद्ध विराम, और उसमें मैंने जहां से हम चले और जिस तरह से चलते गए उसको शॉर्ट में मैं नोट बनाता गया, और मैंने 14 दिन में वो उपन्यास लिखकर छापा था। लेकिन उसकी चर्चा किसी साहित्यिक क्षेत्र में नहीं हुई। अंतिम पुस्तक मैंने युद्ध के ऊपर जो लिखी वो थी यूं जन्मा बांग्लादेश, जिसमें मैंने 10 वर्ष लगाए। उन जगहों पर गया जहां युद्ध हुआ था, जहां लड़ाइयां लड़ी गई थी, मुक्ति वाहिनी थी, और उसको लिखने में मैंने 200 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया, और उसको पहले दिन से 25 तारीख की रात से लेकर जब तक कि वहां सरेंडर हुआ और हम वापस आए, 25 दिसंबर को हम वापस आ गए थे 71 में, सब कुछ छोड़कर, क्योंकि और अपनी हमने चौकियां संभाल ली थी। तो ये कुछ जो कुछ मैंने है वो इसमें समाहित है, और इसके 4 या 5 संस्करण निकले हैं। बड़ी पुस्तक है और जैसा था वैसा ही लिखा है। होता यह है कि हिंदी में लिखा तो बहुत गया है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में जाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, युद्ध लड़ने वाले बहुत कम होते हैं, और युद्ध की विभीषिका और उसमें जो मानवीय त्रासदी है उसको देखने वाले बहुत कम होते हैं। मैंने उस दृष्टि से युद्ध पर 5 पुस्तकें लिखी हैं।
बाकी मैं जहां जहां रहा, मैं यात्रा वृत्तांत लिखता रहा, ट्रेवलॉग्स लिखता रहा, जो सीरियलाइज होते रहे अलग अलग उसमें, क्योंकि जो हम देखते हैं वो आम आदमी नहीं देखता। मैं इस देश के 4 कोने देख चुका हूं। मैं राजस्थान में रहा हूं, गुजरात में रहा हूं, वहां की जिंदगी देखी, पूर्वोत्तर भारत के आतंकवादी देखे, उनकी मानवीयता देखी, और पंजाब के भी देखे। बहुत अंतर है दोनों में। यही बातें मैंने अपनी पुस्तकों में लिखी हैं। फिर चाय बागान की जिंदगी क्या है, मेरा उद्देश्य एक ही था। मेरे देशवासी हैं, अगर भटक गए हैं तो मेरा उद्देश्य उनको वापस मिलाना है। और मुझे बड़ी खुशी है कहते हुए, और मैं घोषणा करता हूं कि मैंने जीवन में किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की, किसी को गोली से नहीं मारा। मेरा आदेश अपने साथियों को यही था, अगर एनकाउंटर होता है तो चाहे कितने मारे जाएं कोई बात नहीं, लेकिन एक बार व्यक्ति एक सरेंडर कर दे तो उसको कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने सबसे अधिक उग्रवादियों से सरेंडर कराया, बोडोज को कराया, मणिपुरीज को कराया, त्रिपुरी में कराया, और उनको जन सामान्य के साथ नैतिक जीवन जीने का अधिकार दिलाया। ये मेरी विशेषता रही। जी, मैं जहां जाता था, अब जैसे एक बार मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जी, उग्रवादियों के बारे में। मुझे बोडोज के बारे में ये कहा गया यहाँ पर संभालिए, तो मेरे काफी बड़े डिप्लॉयमेंट था। मैं जानना चाहता बोडो होते कौन है। मैंने बहुत ढूंढा, तो जो पुस्तकें लिखी गई थी उसमें यही था कि साहब ये तिब्बत में रहते थे गुफाओं में, और वहां से आकर यहाँ बस गए हैं, और ये भारतीय नहीं है। अधिकांश भारतीय ऐसे लोगों के लिए जो जनजातियां हैं उनके बारे में यही कहानियां है कि बाहर से आए थे, ये भारतीय नहीं है। मैं लौट रहा था तो एक छोटा सा बाजार लगा हुआ था। मैं बाजार में गया, पत्ते पे कोई 4 बैगन बेच रहा था, कोई लौकी बेच रहा था, छोटी छोटी दुकानें थी। एक व्यक्ति टेबल पर कुछ इंजेक्शन लगा रहा था। मैं वहां गया, मुझे आकर्षण हुआ, ये क्या कर रहा है। मैं, आप डॉक्टर हैं? वो तो उसने हाथ जोड़कर, नहीं साहब हम डॉक्टर नहीं हैं। तो आप कौन हैं? नहीं साहब मैं तो वैसी कंपाउंड्री सीखी है, गरीब आदमियों को लगा देता हूँ इंजेक्शन। तो वो डेकाड्रोन का इंजेक्शन लगा रहा था। मैंने पूछा आप जानते हैं क्या है ये? हाँ साहब मैं जानता हूँ। आप कौन हैं? तो उसका उत्तर बहुत सटीक था, बहुत, मेरे को बहुत दुख हुआ। बोला साहब हमारी माँ तो राक्षसी थी, हम भीम की संतान हैं। क्या मतलब? साहब हम किरात हैं, लोग हमें बोडो कहते हैं। क्या बोडो का मतलब क्या है? क्या बोडो का मतलब है सुअर, वराह, हमको सुअर के नाम से पुकारते हैं। मैंने कहा आप मुझे बताएंगे आपकी संस्कृति क्या है, आपके बारे में इतिहास कैसा? अभी तो मेरा वक्त है, आप अगर मेरे घर आए तो मैं बताऊंगा। अगले रोज मैं उस घर गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं पहुंचा तो मैं इतना भावुक हुआ। उसकी पत्नी आई और उसने मेरे चरणों में अपने सिर रख दिए। मैं चौंका, पीछे हटा। मैंने कहा आप क्या कर रही हैं? तो वो व्यक्ति कहता है अपने भाई का स्वागत कर रही है घर में, हमारे यही स्वागत किया जाता है। ये संस्कृति है वहां के आदिवासियों की। ये किरात महाभारत में बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत। और भीम की पत्नी हिडिंबा वो किरात थी। किरातों का साम्राज्य असम से लेकर त्रिपुरा तक था। अभी कभी उनकी बनी हुई, बोडोज की बनी हुई आप झोपड़ियां देखें तब आपकी समझ में आएगा किस तरह से वो अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। मणिपुर में भी यही है। जो सांस्कृतिक विरासत हमारी है वो जनजातियों में है। दुर्भाग्य है कि उस पर कभी कोई चिंतन, कोई लेखन, कोई संशोधन नहीं हुआ है कोई। जी। तो गौर साहब आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जो है वो सवाल पूछने के लिए तैयार हैं।
तो स्टूडेंट जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो ऑन कैमरा आए और अपना सवाल पूछें। नमस्कार। सर, मेरा नाम तृप्ति कर्नाटक है। सर, जैसा कि आपने बहुत सारे इंसिडेंट बताए बिटवीन द कंट्रीज, कम्युनिटीज और भी चीजें, इंसानियत, हैवानियत, इन चीजों के बारे में, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी लाइफ का कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट जो आपने देखा और जिससे आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल गया। मैंने आपको बतलाया तो सही, अभी एक आदिवासी का मैंने बतलाया है। जब मैं उसके घर में गया, जिस तरह का स्वागत उन्होंने मेरा किया और जिस तरह से कहा कि हमें खेद है कि हमारी माँ राक्षसी थी लेकिन हमारे पिता भीम थे, हम पांडवों की संतान हैं। जो जिन व्यक्तियों पर आदेश दिया गया था कि इनको क्रश करो, इनके उग्रवाद को समाप्त करो, और जब वो इस तरह की बात करते हैं तो समाप्ति की बात नहीं आती, फिर उनको अपनी ही जलधारा में प्रवाहित करने का अवसर आता है। जी जी, जिज्ञासा अपना सवाल पूछो। सर, यू हैव सीन वर्स्ट ऑफ व्हाट ह्यूमैनिटी हैज टू ऑफर। तो आपने इतनी बड़ी तादाद पे मौत देखी है, तो इतना सब होने के बाद आपने अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे संभाला? जितनी मारकाट देखी उतनी शांति मिली। लगा कि ये तो, यदि युद्ध में आप आमने सामने लड़ते हैं, बॉक्सिंग, दो बॉक्सर जब लड़ते हैं एक दूसरे को खूब पंच मारते हैं, लेकिन गिरे हुए आदमी कोई पंच नहीं मारता। तो पंच मारते समय कोई कष्ट नहीं होता जब आमने सामने लड़ाई है, लेकिन नीचे गिरे हुए व्यक्ति को पंच नहीं मारा जाता। यही अंतर है, यही हमें शिक्षा दी जाती है ट्रेनिंग के दौरान। जी, समीर पंडिता अपना सवाल पूछो। यस सर। सर, दुनिया ऐसी है कि नफरत सबको सिखाई जाती है। तो सर, आप किसी दूसरे इंसान की तरफ जो दुश्मन है, काइंडशिप या ह्यूमैनिटी कैसे महसूस करते हैं? देखिए, आप अंदाज लगाइए, एक जख्मी आदमी है, आप सड़क पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, आप जख्मी आदमी को उठाते हैं, सहायता करते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि आपके मन में मानवीय भावनाएं हैं। ऐसे ही जब एक व्यक्ति लड़ते लड़ते नीचे गिर गया है और बुरी अवस्था में है, जख्मी है, रक्त बह रहा है, करा रहा है, उस समय नफरत का प्रश्न कहाँ आता है? उस समय तो मानवीयता आती है, हम उसकी मदद करते हैं। जी जी, शांभवी श्री सवाल पूछो। सर, मैंने पूछना था कि आप, जैसे आपने ही कहा कि किरात के बारे में कि वो इतने हम्बल है, इतने सभ्य हैं, फिर आपने कहा कि आपने उन लोगों से वो उग्रवादी में गिने जाते, तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब जब वो इतने हम्बल है, इतने सभ्य हैं, तो फिर हमारी गवर्नमेंट या फिर हमें वो उग्रवादी के रूप में ऐसे राइज क्यों करते हैं, और हमारा थिंक टैंक क्या है उसके बारे में? देखिए, उग्रवादी तो तब मानती है जब वो हथियार उठा करके लोगों पर हमले करते हैं। उससे पहले सरकार ने, आजकल तो सरकार बहुत अच्छी तरह उनको बहाल कर रही है, जी, पहले भी ये प्रयास होता था। लेकिन देखिए, मेरे लिए कुछ राजनीतिक टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। जी 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 जी, किसी भी क्षेत्र में उग्रवाद तब पनपता है जब राजनेता उनको शरण देते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी 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 जी, समझ रहे हैं। तो ठीक है, चलिए अब हम और सवाल एक या दो ले लेते हैं। आदित्य गोसाई अपना सवाल पूछो। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपका फर्स्ट कॉम्बैट था 1965 का बैटल ऑफ डोगराई, इसे पोस्ट इंडिपेंडेंस वन ऑफ द मोस्ट फियर्सेस्ट बैटल माना जाता है इन्फेंट्री की, एंड वर्ल्ड की सबसे जो 10 इन्फेंट्री लेवल पे लड़ी गई बैटल्स हैं उसमें भी बैटल ऑफ डोगराई की गिनती करी जाती है। तो इसमें मेनली जो थिएटर ऑनर है वो 3 जाट को गया था, एंड सबसे ज्यादा भूमिका उसकी भी दर्शाई गई है। तो मैं, आपने क्योंकि खुद 15 डोगरा की तरफ से उसको सर्व करा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 15 डोगरा का बैटल ऑफ डोगराई एंड इच्छोगिल में क्या योगदान था, एंड आपके वहां पे एक्सपीरियंसेस कैसे थे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, एक बटालियन पर कब्जा करने के लिए 3 बटालियंस की आवश्यकता होती है। 1 2 3 की बैटल होती है। थर्ड जाट को
दाहिनी तरफ से इस पर हमला करने का आदेश मिला था। 13 पंजाब को फ्रंट से भेजा गया था और जो बेस था, देखिए जब आप चलते हैं तो एक पैर जमीन पर होता है और एक हवा में होता है। जो हमला कर रहा है उसको कहते हैं हवा, एक होता बेस। फर्म बेस था और उसमें तीनों बटालियंस ने हिस्सा लिया था। मॉपिंग अप के बाद में इनकी सबके एमजीज, इनकी मोटर्स, इनकी रिजर्व्स, इनकी मॉपिंग अप जो बाद में हुई है, ये पूरे ब्रिगेड की है। और ये जो बैटल ऑफ डोगराई है, इसका बैटल ऑनर एक बटालियन को नहीं गया, ये आपको शायद सही नहीं मालूम है, ये पूरे ब्रिगेड को गया है और 15 डोगरा को भी गया है। जी बेस हमारा था। जी। जब आप आगे जा रहे हैं तो अकेले कैसे जाएंगे? आपको कवरिंग फायर चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए। बाद में मॉपिंग अप के लिए जब आप डोर से डोर जाकर के तलाशी ला रहे हैं, उठा के कैदियों को ला रहे हैं, ये पॉसिबल तभी है जब तीनों बटालियंस उस पर, ये ब्रिगेड का पूरा कंट्रीब्यूशन था। आपको शायद नहीं मालूम, 1/3 ब्रिगेड इसमें राइट ऑफ हो गया था। जी, नहीं अच्छा हुआ, आपने सवाल भी अच्छा था और आपने बताया, तो इससे बहुत सारे लोगों को एक नई जानकारी मिली होगी, क्योंकि युद्ध के बारे में ऑब्वियसली इस तरह की जानकारियां कम ही होती हैं लोगों के पास। आप चाहें तो देख लीजिए, आप चाहें तो उठा करके देख लीजिए। 15 डोगरा को भी बैटल ऑनर डोगराई का है और 13 जाट को, 13 पंजाब को भी है, ये पूरे ब्रिगेड को है। जी सर, आपने इतनी सारी अमेजिंग बुक्स लिखी हैं, आपकी कौन सी एक ऐसी फेवरेट बुक है जो आपको बहुत ज्यादा, आप जिससे कनेक्ट करते हो, और वो क्यों? लेखक के लिए तो सभी पुस्तकें अच्छी होती हैं, लेकिन सबसे अच्छी पुस्तक जो मैंने लिखी, जिसको मैंने 7 बार लिखा, और उसका नाम है कोहरे की दरार। ये पुस्तक मैंने 7 बार इसलिए लिखी कि मैं लिखने के बाद लोगों को पढ़ाता था और जो उसमें संशोधन मानते थे मैं उसमें करता था। मेरी इच्छा ये थी कि मैंने जब अंग्रेजी के बहुत सारे उपन्यास पढ़े थे, मैं एक ऐसी परफेक्ट पुस्तक बनाना चाहता था कि जिस पर कोई उंगली न उठा सके, इसमें ये गलती है। ये कहानी एक ऐसे अफसर की है जो जिसके हाथ में बुक बम फट गया। ये जीवंत कहानी है ये। और वो 11 महीने तक अंधा रहा। उसके दाहिने हाथ की सारी उंगलियां चली गई, बाएं हाथ की 3 उंगलियां बची थी। और 11 महीने तक अंधा रहने के बाद उसको किस तरह जीवन में वापस लाया गया, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने क्या किया, डॉक्टरों ने क्या किया, उसके ऑर्डली ने क्या किया, किस तरह से। आप सोचिए, जो आदमी अंधा हो, जब सुबह जाएगा तो उसको कौन साफ करेगा, जिसके हाथ बंधे हो। तो जब मैंने ये कहानी, ये जो मेरी पुस्तक है कोहरे की दरार, ये राजकमल से प्रकाशित हुई थी, तो उस जमाने में श्रीमती शीला संधू इसकी शायद एमडी थी, तो वो कहने लगी, गौर साहब आपने बहुत अच्छी लिखी है। मैं 3 बार उसको पढ़ते पढ़ते रोई हूँ। तो जिस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे पाठक रोए, मेरे ख्याल से उससे बेहतर पुस्तक और कोई हो नहीं सकती। जी जी जी, निश्चित रूप से। यश जोशी, तुम्हारा सवाल है तो पूछो जल्दी से। जय हिंद सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, जब लेफ्टिनेंट कर्नल डेस्मंड हेड ने जब अपने सोल्जर से कहा था कि जिंदा या मुर्दा डोगरी सबको साथ मिलना है, तो सर उस वक्त जैसे कि सर भारत के जो सैनिक मरे थे, लगभग 90 सैनिक मरे थे इस वॉर में। तो सर जब मतलब जो घायल जो सैनिक होते हैं उनको जब कंधों पे उठाकर ले जाया जाता है, तब डेस्मंड हेड ने अपने एक सैनिक से उस वक्त पूछा था कि अगर सीओ साहब को गोली लग गई तो तुम क्या करोगे? तो उन्होंने बोला था कि मैं उनको कंधों पे उठाऊंगा और डोगरी ले जाऊंगा, क्योंकि आपने कहा है कि जिंदा या मुर्दा डोगरी साथ पहुंचना है। तो सर उस वक्त कैसा, मतलब दिमाग में, मतलब सैनिकों के क्या जोश होता है कि वो अपने घायल, इतने जिनको गोलियां लगी हैं या जो इतने मतलब दुर्दशा में होते हैं कि उनसे चला भी नहीं जा रहा, और उन्हें कंधों पे ले जाते हैं वो उठा के। सर ये जोश कहाँ से आता है? और मतलब ऐसी सिचुएशन में
जहाँ पे आपके सामने लाशें पड़ी हों, बिछी हुई हों पूरी। सर मेरा बस यही सवाल है। आपका सवाल है कि प्रेरणा कहाँ से आती है? जी सर। देखिए, सैनिक का सबसे नजदीक रिश्तेदार, भाई, बेटा, पुता से भी अधिक निकट उसका मित्र होता है, साथी होता है। गिरने पर ब्लड वो देगा, उठाएगा वो। अक्सर होता है जो लोग जख्मी होते हैं, हम लोग ही एक दूसरे को उठा करके लाते हैं। तो कर्नल हेड ने ये कहा था, अगर मैं मर गया तो क्या करोगे? तो कल जिंदा या मुर्दा तुम्हें कंधे पे लेकर के जाएंगे, लेकिन डोगराई पर हम कब्जा करेंगे। बड़ी चर्चित रही है ये, जी। तो लोग ले जाते हैं। जी। तो हम चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। डॉक्टर सुष्मिता बाला, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, धन्यवाद सर। बहुत मतलब इस तरह का कार्यक्रम और जिसमें आपकी इतनी सारी चीजें हमें पता चली और बहुत ही इमोशनल एक तरह से चीजें थी जो पता चली। मैं केवल यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो पुस्तकें लिखी हैं वो हमें किस तरह से अवेलेबल हो सकती हैं। और मैं क्योंकि बहुत ज्यादा बुक पढ़ना पसंद करती हूँ, तो मेरा सिर्फ ये प्रश्न था कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए जो आपने लिखी हैं। देखिए, मेरी 51 पुस्तकें हैं। जी कुछ युद्ध पर हैं, जी। कुछ उपन्यास हैं, कुछ यात्रा वृत्तांत हैं, और 12 तो ऐसी पुस्तकें हैं जो शायद पता नहीं आप पढ़ना पसंद करें न पढ़ें। महापुराणों का सार संक्षेप है। जी। और यात्रा वृत्तांत प्रकार की सबसे जो लेटेस्ट मेरी पुस्तक है, यूं जन्मा बांग्लादेश, वो एक पुस्तक है। मैं चाहूंगा पहले आप उसको पढ़ें और उसके बाद में फिर आप कहेंगी तो अगर मेरे पास होगी मैं अपने पास से भेज दूंगा। हाँ, मुझे ट्रेवलॉग भी चाहिए और ये जो आपने पुस्तक बताई जो आपने लास्ट में लिखी है वो भी बिल्कुल चाहिए। अभी तो एक प्रकाशन में भी है, जी। शौर्य गाथाएं हैं 300 सैनिकों की, सीमा जी। सुरक्षा बल के, जी। उनकी शौर्य 300 लोगों की शौर्य गाथाएं हैं, किस तरह से बलिदान करते हैं, किस तरह से शौर्य में लड़ते हैं, वो कहानियां हैं जिनको जो अवार्ड मिले हैं जिनको। जी। तो वो प्रकाशन में है। लेकिन ये जो यूं जन्मा बांग्लादेश, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप ये मेरे ख्याल से अमेजन पे मिल जाएगी या सामयिक प्रकाशन पे मिल नहीं, जाएगी। निश्चित रूप से हम इसको मंगा लेंगे, अपने कॉलेज में मंगा लेंगे, लाइब्रेरी में रख सकते हैं, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकें। और जो यूं जन्मा बांग्लादेश जैसी किताब में मेरी भी बहुत ज्यादा रुचि है, क्योंकि 1971 से जब से बांग्लादेश बना है, उससे पहले से और आज तक आई हैव बीन फॉलोइंग बांग्लादेश वेरी क्लोजली। तो जो कुछ भी हुआ है पिछले 40 सालों में बांग्लादेश में, वो मुझे रोज बरोज पता है। सो आई वेरी वेरी कीनली फॉलो इट। तो मेरा भी इंटरेस्ट होगा कि इस तरह की किताब मैं पढूं। और चलते हैं अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। और अगर इफ आई एम आस्क्ड टू सम अप द होल सेशन, देयर वर सो मेनी शेड्स, सो मेनी लेवल्स, सो मेनी इमोशंस which were part of this whole session, but the most important things which strike my mind is that one, that we have to live with brotherhood. We have to live in harmony without any divide on any basis, be it caste, be it religion, because ultimately we all are Indians, we all are human beings, and we have to live like that. So this is the most important takeaway from your session, Mr. Gaur. And then the other thing, normally the kind of politics that's today, and without making any aspersion on today's politics, domestic or international, but then the thing that you said, which we also believe in, that we should have good relations with our neighbors. And because if neighbors are living peacefully, then ultimately there will be peace and prosperity everywhere. There should be no enmity except wars,
and though you have been in the armed forces, but the way you have expressed this all establishes that you don't believe in violence. जैसे कि आपने कहा कि अभी कभी आपने गोली नहीं चलाई, तो अगर गोली बिना चलाए हम पीस ला सकते हैं, अगर गोली चलाए बिना हम एक नॉर्मेलिटी ला सकते हैं, और एक जैसे देश के अंदर भी आपने कहा आतंकवाद के मुद्दे पे कहा कि अगर हम लोगों को मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, वापस देश की मुख्य धारा में ला सकते हैं, तो अल्टीमेटली सारे लोग इस देश के ही हैं और इस देश के लिए ही काम करते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम अपने अप्रोच में, तो अपने एटीट्यूड्स में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं और थोड़ा सा और ब्रॉड विजन के साथ चीजों को देखें, तो देश के अंदर भी शांति होगी और हमारे बॉर्डर्स भी सेफ और सिक्योर होंगे। और जो मानवता की जिस तरह से आपने बात की, और इंसिडेंटली दिस इज अ गुड थिंग विच हैज इमर्ज फ्रॉम वेरियस सेशंस ऑफ वाइब्रेंट इंडिया सीरीज। अभी जो लास्ट के भी हमने कुछ एपिसोड्स किए हैं, अल्टीमेटली सारे लोगों ने मानवता की बात की है, ह्यूमैनिटी की बात की है। अभी जो परसों भी हमारा जो वाइब्रेंट इंडिया सीरीज का एपिसोड हुआ था, उसमें भी इस तरह की चीजें आई थी, क्योंकि अल्टीमेटली देयर कैन बी नो बेटर थिंग देन द पीस, हार्मनी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अगर हम इसके साथ जाएं तो ऑब्वियसली सबका भला होगा, मानवता का भला होगा और सर्वत्र सुख, चैन और शांति होगी। इन वर्ड्स के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को, आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here.